Rohini Sharma here and I welcome you all in my YouTube channel Easy Mathematics with Rohini. So guys, today I am going to solve the remaining parts of question number 4, exercise 5.1, chapter arithmetic progression. So let's solve it. So your ninth part is 1, 3, 9, 27 and so on. So we'll solve this part also in same manner as we did in earlier parts. So here A1 is equals to 1, A2 is equals to 3, A3 is equals to 9 and A4 is equals to 27. Now, so we have to check out here whether this series is an AP series or not. And for that purpose, we will find the common difference. So our D, that is common difference, it will be equals to A2 minus A1, which is equal to our A2 is 3 minus A1 is 1. And we will get 3 minus 1, 2. Now, once again, we will find out D, that is A3 minus A2. Here, A3 is 9. Minus A2 is 3 and 9 minus 3 is 6. So, what we observe here that our common difference is not same in both the cases. So, we can write since common difference is not same in both cases, we find that we have given series is not an AP series. तो हमें यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो हमें सीरीज गिवन है, this series is not an AP series. Now let's solve the next part, that is part 10. In part 10 you have given A, then twice of A, 4 times A and so on. So let's solve this part in a similar manner. So in part 10 you have given A, twice of A, 3 times A, 4 times A and so on. So this will be A1, that is A, A2 will be twice of A, A3 will be thrice of A and A4 is equals to 4 times A. So once again let's find out D, which is equals to common difference. So it will be equals to A2 minus A1. Our A2 is twice of A minus A1 is A. So guys, इसको करने के 2 ways हैं. The first way is आप यहां से A को कॉमन ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स A है और यहाँ पे 1 टाइम, तो मैं A के कॉमन ले लेती हूँ. 2 टाइम्स A का मीनिंग क्या होता है? A मल्टीप्लाई बाय A प्लस A. तो हमारे पास यहाँ पे 2A है, तो यहाँ पे मैंने अगर एक ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा. A कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली 2 विल रिमेन. तो माइनस यहां से A था तो A को ही मैंने बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाता है 1. 2 minus 1, so we will get A और ब्रैकेट में रह जाएगा 1, that is A. So मैं इस मेथड को यूज नहीं करूंगी. आप सिंपल चीज याद रखिए, जब भी आपको इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आती है ट्वाइस ऑफ A माइनस A, आप एक चीज माइंड में रखिए, ट्वाइस ऑफ A मीन्स 2A, A प्लस A, माइनस A मीन्स 1A. तो 2A में से हमने 1A जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास एक ही चीज बची 1A, तो हम सीधे डायरेक्टली इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ A माइनस A इज इक्वल्स टू A. सो आवर कॉमन डिफरेंस इज A. नाउ वंस अगेन A3 माइनस A2. सो हियर A3 इज थ्राइस ऑफ A माइनस A2 इज ट्वाइस ऑफ A. सो हियर यहाँ पे हमारे पास 3A है, 1 2 3. उसमें से मैंने 2A, A 3A है, उनमें से 2A को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास एक ही बचेगा, ट्वाइस ऑफ A माइनस ट्वाइस ऑफ A
is equals to a. So here in both the cases we get the common difference as a. तो एक और बार हम चेक कर लेते हैं इसको. A4 minus A3. A4 is 4a minus 3a and it will again be a. So therefore we can say that the given series is an AP series. So in next part we have to find it with and. पहले हमें क्या बताना है, अगर वो AP सीरीज है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमें बताना होता है. तो गिवन सीरीज एन AP सीरीज एंड D, that is common difference is equals to A. Now next write the three more terms. So let's find out here. A5. तो what is A5? मैंने आपको previous parts में भी बताया था. A5 is equals to A4 plus D. What is A4? A4 is 4 times A plus D, that is A. तो 4 times A है, उसमें मैंने एक और A ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5A. Similarly, A6 will be A5 plus D. A5 क्या है 5 times A plus D is A. तो 5A plus A is equals to 6A and A7 will be A6 plus D, which is equals to A6 is 6 times A plus A is equals to 7 times A. So these are the three terms. हम लास्ट में लिखेंगे. Therefore the next three terms are, कौन सी है नेक्स्ट थ्री टर्म्स? 5 times A, 6 times A and 7 times A. So this was your part 10. Now let's solve part 11. तो गाइस किसी भी स्टेप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जस्ट सिंपली एक ही पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक ही स्टेप को फॉलो कर रही है, एक ही मेथड है हम सबको सॉल्व करने का. क्वेश्चंस को आपने वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं मेथड्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है. नाउ इन पार्ट 11 यू हैव गिवन a का स्क्वायर, a क्यूब, a4 एंड सो ऑन. सो वंस अगेन हियर ये हमारा क्या होगा a1, दिस इज a2, this is A3, this is A4. So here let's find out common difference, which is equals to A2 minus A1. So what is A2? A2 is A raised to power 2, A का square, and minus A1, which is A. So guys ध्यान से देखें, A raised to power 2 का मीन होता है A multiply by A, and twice of A means A plus A. इन दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूजन होती है कई स्टूडेंट्स को, तो इस चीज दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है. यहाँ पे A स्क्वायर का मीनिंग है हम A को 2 बार क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस A. तो यहाँ पे 2 टाइम्स A है, A इंटू A, तो मैं A के A को बाहर कॉमन ले लेती हूँ. तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ओनली 1A माइनस इसके पास एक ही A था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा 1. सो हियर वी विल गेट A ब्रैकेट में A माइनस 1. सो दिस इज आर D. Once again find out D, that is A3 minus A2. Now what is, sorry, A3 yes, A3 minus A2. So what is A3? A3 is A raised to power 3 minus A raised to power 2. तो A raised to power 3 का मीन्स क्या होता है A into A माइनस, ये क्लास 8 में आपने एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर्स में की होंगी सिंप्लीफिकेशंस, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि किस वे में आप इनको कर सकते हैं. अदरवाइज आपको डायरेक्टली करना आता है तो आप कर सकते हैं. दिस इज A क्रॉस A माइनस A इंटू A. तो यहाँ पे हमारे पास 3A है और यहाँ पे ओनली 2, तो हम 2A दोनों से लेके बाहर रख लेंगे कॉमन. सो हियर वी गेट A स्क्वायर. A इंटू A मीन्स A स्क्वायर. A स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा सिर्फ A के माइनस. अब यहाँ से दोनों A मैंने बाहर निकाल लिए तो लास्ट में हमारे पास 1 ही बचता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, तो विच इज इक्वल्स टू D. सो हियर यहाँ पे हमारा A था, D था, कॉमन डिफरेंस A इंटू A माइनस 1, और इन दिस केस our D is A स्क्वायर इंटू A माइनस 1.
यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है. सो सिंस d इज नॉट सेम, क्योंकि d जो है वो सेम नहीं है दोनों केसेस में, द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP सीरीज. तुम्हारी जो सीरीज है वो AP सीरीज नहीं है. So this was your part 11. Now let's move on to part 12. So part 12 में guys आपको रूट में नंबर्स दिए हैं और उनको भी हम सिमिलर वे में बहुत इजीली सॉल्व करेंगे. In part 12 you have given root 2, root 8, root 18, root 32 and so on. So here same way में आप लिखोगे a1 is equals to root 2, a2 is equals to root 8, a3 is equals to root 18 and a4 is equals to root 32. So let's find out d here, which is equals to a2 minus a1. What is a2? Root 8 minus a1, that is root 2. अब यहां से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी कि दोनों ही नंबर डिफरेंट है. अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सो लेट्स डू इट. आपको सबसे पहले जो रूट में 8 है इसको तोड़ के लिखना है. इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको. दिस इज 8, हम 8 को लिख सकते हैं. पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप सिंपली लिख सकते हैं रूट 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस रूट 2 विच इज इक्वल्स टू. अब क्लास 8 में आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर्स में पढ़ा होगा. ये दो नंबर्स जब पेयर बनाते हैं तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं. दिस इज 2 इंटू 2, तो एक पेयर बन गया. तो हम इसको रूट के बाहर लिखेंगे और अंदर हमारे पास रह जाएगा सिर्फ रूट 2, ये वाला 2, और बाहर रूट, और ये दोनों रूट के बाहर माइनस रूट 2. अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ये दो नंबर्स हैं अलग अलग. इसके पास है 2 रूट 2, इसके पास है सिर्फ रूट 2. तो हम यहां से रूट 2 को निकालेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे. इसके पास क्या रह जाएगा गाइस? यहां से मैंने रूट 2 को बाहर ले लिया. अब अकेला 2 बच गया माइनस इस इधर सिर्फ रूट 2 था जो बाहर आ गया. तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ 1. तो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होता है. तो रूट 2. यहाँ पे हमें डी क्या मिल गया? रूट 2. सो लेट्स फाइंड इट अगेन. a3 माइनस a2 विच इज इक्वल्स टू रूट 18 माइनस रूट 8. सो वंस अगेन हम रूट 18 को तोड़ के लिखेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18 माइनस रूट 8 को आपने जैसे ऊपर किया था 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. अब जो पेयर्स है उनको आप बाहर लिख दीजिए. यहाँ पे 3 2 टाइम्स आ रहा है, ये पेयर बना रहा है, तो इसको मैं रूट के बाहर लिखूंगी. इट विल बी 3 रूट 2 माइनस यहाँ पे ये 2 2 यहाँ पेयर बना रहे हैं 2 और रिमेनिंग 2 इन द रूट. तो रूट 2 दोनों के पास है, तो हम इन दोनों से रूट 2 लेके बाहर कॉमन लिख देंगे. और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा? 3 माइनस 2. सो हियर इट विल बी इक्वल्स टू रूट 2 वैसे का वैसा रहेगा और 3 माइनस 2 1 होता है, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहां से फिर से जो हमारा डी है वो रूट 2 आया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस d इज इक्वल्स टू रूट 2 इज सेम. सो गाइज आप इसके बाद नेक्स्ट एक और केस लेके दैट इज a4 माइनस a3 लेकर भी देखेंगे और वहां से भी आपका रूट 2 ही आएगा. उसके बाद आप ये लिखेंगे सिंस d इज इक्वल्स टू रूट 2 इज सेम, सो गिवन सीरीज इज एन AP सीरीज. जो हमारी गिवन सीरीज है वो क्या है? AP सीरीज है. और अब अगर वो AP सीरीज है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया क्या है? रूट 2. अब नेक्स्ट की 2 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स फाइंड
find out the next two terms, sorry, next three terms in fact. अभी हमें फाइंड करना है A5, A6 एंड A7. सो हमें पता है D हमारा क्या है, √2. सो हियर A5 will be equals to A4 plus D, which is equals to √32 plus √2. अब ध्यान से देखिएगा, ये √32 है, इसको मैं फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स करके लिखूंगी. 2 16 का 32 होता है, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो √32 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 into 2 4, 4 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस √2. अब वंस अगेन यहाँ पे जो जो भी नंबर पेयर्स में हैं उनको हम बाहर लिखेंगे. ये 2 2 उठ के बाहर आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 का पेयर था वो भी एक बाहर आ गया. तो लास्ट में मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ एक 2, दैट इज √2 प्लस √2. तो ये बन जाएगा 4√2 प्लस √2. अब यहां से फिर से हम √2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 प्लस √2 मैंने बाहर ले लिया 1, विच इज इक्वल्स टू 5√2. 4 + 1 5 और √2 उसके साथ लग गया. अब ये हमारा आ गया A5. बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारे नंबर्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, √2, √8, √18, √32. बट हमारा नंबर जो है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में आया, दैट इज 5√2. तो हमें इसको इसी फॉर्मेट में लेके जाना है. तो वो हम कैसे करेंगे, ये चीज भी आप ध्यान से देखिए. ये मेरे पास है 5√2. जब भी कोई नंबर रूट में पेयर बनाता है, लाइक 5 into 5, तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर ले जाते हैं, रूट के बाहर निकाल देते हैं. अब हमें क्या करना है, इस 5 को रूट के अंदर लेके जाना है. स्क्वायर रूट एक ऐसा रूम है जिसके अंदर पेयर्स नहीं रह सकते. अगर पेयर्स हैं तो वो बाहर जाके सिंगल हो जाते हैं, और अगर बाहर कोई सिंगल मैन है तो वो अंदर आके डबल हो जाता है. तो इन सिमिलर मैनर इस 5 को भी हमें इस स्क्वायर रूट नाम के रूम के अंदर लेके जाना है. तो हम इसको कैसे लेके जाएंगे, जैसे हम पहले करते थे उसका रिवर्स प्रोसेस. जब नंबर्स अंदर पेयर्स में था तो उसको हम बाहर ले आते थे सिंगल. अब बाहर नंबर सिंगल है तो जब मैं उसको रूम के अंदर लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, डबल. सो हम 5 को अंदर लेके जाएंगे और लिखेंगे 5 क्रॉस 5, और √2, और 2 तो पहले ही था रूट के अंदर तो वो वैसे का वैसा रहेगा. तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 5 क्रॉस 5 कितना हो गया, 25 इंटू 2, विच इज इक्वल टू √50. तो यहां से हमें मिल गया √50, विच इज आवर A5. अब हमें क्या फाइंड करना है, A6. तो उसको भी हम सिमिलर वे से करेंगे. थोड़ा सा ये पार्ट लेंथी है, बट अप्रोच हमारी फिर से वही है, सेम. बस स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करते जाना है. अब हम निकालेंगे A6 एंड इट विल बी A5 प्लस D. अब हमारा A5 क्या निकला था, √50. सो हियर वी कैन राइट डाउन A5 एज √50 प्लस D, दैट इज कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू √2. अब फिर से हम 50 को प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे उसके. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, which is equals to √5, sorry, 2 क्रॉस 5 10, 10 into 5 50 प्लस स्क्वायर रूट 2. अब ये पेयर बना रहा है तो इसको मैं रूट के बाहर लिखूंगी. तो सिंगल 1 टर्म हो जाएगा 5, तो हमारे पास रह जाएगा 5√2 प्लस √2. अब √2 दोनों के पास है तो दोनों का √2 मैं बाहर लिखूंगी कॉमन. तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, 5 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 आ जाएगा 6, और √2 को उसके आगे लिख दूंगी मैं 6√2. अब फिर से जैसे हमने A5 निकालते टाइम किया था, इसको
उसी फॉर्मेट में लेके जाना है, रूट के अंदर लेके जाना है 6 को। तो अब आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस A5 में बताया, आपको क्या करना है, 6 को रूट के अंदर ले जाके डबल टाइम्स लिख देना है डायरेक्टली। तो ये बन जाएगा 6 क्रॉस 6 इंटू 2। 2 ऑलरेडी रूट के अंदर था तो वो अंदर ही है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 6 36, 36 इंटू 2, 2 6 12, 2 6 72, ये बन जाएगा अंडर रूट 72। तो हमारा A6 क्या आ गया, रूट 72। सो लेट्स फाइंड आउट A7। A7 भी हम इसी वे में निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू A6 प्लस D विच इज इक्वल टू रूट 72 प्लस रूट 2। तो गाइस अभी हम 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 72 की रूट 72 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 प्लस रूट 2 जो ऑलरेडी हमने पहले से लिखा हुआ था। अब यहाँ पे फिर से जो पेयर्स बना रहे हैं उनको मैं बाहर लिख दूंगी। यहाँ पे 2 भी पेयर बना रहा है और 3 भी पेयर बना रहा है, तो दोनों को मैं बाहर ले आऊंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 प्लस रूट 2। अब यहां से भी रूट 2 कॉमन ले लेंगे और मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 इंटू, अच्छा एक स्टेप इसके बाद आप लिख सकते हैं, 2 3 6 रूट 2 प्लस रूट 2। तो यहां से रूट 2 मैंने जब बाहर ले लिया तो 6 प्लस बीच में रह जाएगा 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 रूट 2। अब 7 रूट 2 को फिर से मुझे डबल करना है इस फॉर्मेट में लाने के लिए, विच विल बी इक्वल्स टू रूट 7 इंटू 7 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7 टू 7 कितना होता है, 49 इंटू 2 जब करेंगे 2 9 18, 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 98। फिर चेक कर लेते हैं, 7 7 49, 2 9 18, 90। यस, तो रूट 98 विल बी आर A7, that is root 98. So the next 3 terms will be root 50, root 72 and root 98. So guys, this is all done for this session. The remaining 3 parts I will discuss in my next video. So if you have any doubt, do write in my comment section. And if you like my video, don't forget to like, share and subscribe.